Poonam this side from Poonam Academy. Today I'm gonna share class 9, chapter number 1 of Eco, that is the story of village Palampur. So let's get started, right? The story of village Palampur, class 9, right? Now let's discuss first what is the meaning of hypothetical village. It's a story of village Palampur and it's just a hypothetical village. So what is the meaning of hypothetical? It is an imaginary village, right? And in Palampur, farming is the main activity, right? Or we can say that 75% of people are dependent on farming, right? And rest of the 25% people, they are dependent on non-farming activities, right? So basically, Palampur is well connected with roads and towns. Let's come to the next slide. The other production activities in Palampur include, that is, if I'm talking about the non-farming activities in Palampur, तो आप क्या देखेंगे कि जो दूसरी activities हैं, like non-farming activities जो है Palampur में, that include small scale manufacturing, transport, shopkeeping, etc. Right? So basically Palampur क्या है, एक बहुत छोटा सा village है और hypothetical village है. It's just an imaginary village, right? And in Palampur, the main activity is farming, because 75% people are dependent on farming in Palampur, and rest of the 25% people are dependent on non-farming activities that are small-scale manufacturing, transport, shopkeeping, etc. So these are the non-farming activities, right? और देखिए, अगर हम देखें इसका थोड़ा सा, तो आप देखेंगे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कितना % लोग जो थे वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे पालमपुर में, तो आपको लिखना है 75% पीपल दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्म, राइट? और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड थी, तो वो आपको लर्न कर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड शॉपकीपिंग एटसेट्रा, राइट? तो इफ आई टॉक अबाउट द फैमिलीज, राइट, जो कि पालमपुर में रह रही हैं, कितनी हैं? देयर आर 450 families living in Palampur, out of which 80 people belongs to upper caste, right? 80 families belong to the upper caste, and rest of the families belong to the SC category, that are Dalit, right? So there are 450 families living in Palampur, out of which 80 upper caste family own the majority of land and village. ठीक है? तो जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, have you read? I think you have read in history also, in your previous classes, that upper caste people, basically they are rich farmers. And if I talk about the Palampur, then in Palampur there are 450 families living there, और 80 जो फैमिली थी वो upper caste फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी कि they are living in पक्का houses which are made up of cement bricks, right? और 1/3 of the family जो थी, out of 450, they belong to the lower caste, that is SC, and you all know SC are Dalit. ठीक है? हम साथ साथ इसको लर्न भी करेंगे, आप बहुत अच्छे से समझिए मैं क्या समझा रही हूँ. 1/3 फैमिली, ठीक है? 1/3 फैमिली कितना हुआ? 450 का 1/3 करेंगे, दैट इज 150 फैमिली जो थी वो क्या थी? दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. देयर आर अदर एक्टिविटीज इन पालमपुर. ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात हो रही है, लाइक डेयरी, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एटसेट्रा. So there are other activities in Palampur like dairy, transport, small scale manufacturing, etc., which also helps run the economy in the Palampur, right? So Palampur is well connected with the roads, right? So basically it is connected with a big village, that is Raiganj. It is 3 kilometers away from the Palampur, and a small town called Shahpur, right? So non-farming activities have already
discussed and it is practiced on a very limited scale, right? Now let's come to the factors of production. What are the factors of production? There are 4 factors of production, right? There are 4 factors of production, that is land, labor, physical capital. Physical capital is again divided into 2 parts, fixed capital and working capital, and then human capital, right? So if I talk about the land, if you want to start a business, what do you require? First is land, right? ठीक है, आपने लैंड का अरेंजमेंट कर लिया, देन उस लैंड पे आपको काम करने के लिए यू नीड सम लेबर और वर्कर, राइट? सो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, राइट? एंड थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मीन्स यू रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, यू रिक्वायर्ड सम मशीनरी, राइट? सो fixed capital is the capital which is used for a longer years, right? For example, if I'm talking about the farmer, so what the farmer needs? Farmer needs machinery, right? Tractors, right? Pump sets. So these are the machines, right? These are the fixed capital which are used for a longer year, right? Or if I talk about the working capital, अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्हाट यू नीड मनी, यू नीड कैश इन हैंड, यू नीड रॉ मटेरियल, दैट इज द फिक्स्ड कैपिटल, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन कैपिटल, दैट इज एंटरप्रेन्योर हु इज अरेंजिंग ऑल द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कोई तो ओनर होता है ना बिजनेस का, जो ये सारे फैक्टर्स को अरेंज करता है, लैंड का अरेंजमेंट करता है, लेबर का करता है, देन वो फिजिकल कैपिटल का अरेंजमेंट करता है, और वो खुद होता है फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो खुद होता है क्योंकि वो इन तीनों फैक्टर्स को क्या करता है, अरेंज करता है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एग्जाम में आएगा, राइट? मतलब इसकी तो मैं श्योर हूँ कि ये आपका एक क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए एग्जाम में कि व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो आप कैसे याद करेंगे? एल स्क्वायर पी एच, राइट? दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. एल स्क्वायर मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, राइट? नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The 4 factors of production. The main purpose of production, main purpose क्या होता है production? To produce the goods and services, right, of the people. ठीक है, want to buy by paying money. अब कोई भी goods का production हो रहा है या services का produce कर रहा है कोई भी producer, तो वो क्यों कर रहा है? For selling in the market to make the profits, right? और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? हमको अगर कोई सर्विस लेनी है, हमको कोई प्रोडक्ट बाय करने हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? What shall I do? What shall we do? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसके अगेंस्ट पेमेंट देंगे, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, राइट? सो द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन. वी कैन से द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड. ठीक है, लैंड क्या है? वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, राइट? So for starting a business, suppose if I'm talking about a big farmer, then big farmer owns his own land. If I'm talking about the upper caste families, those are the large farmers in Palampur. ठीक है, तो 80 upper class families जो हैं यहाँ पे, उनकी क्या है? उनके पास खुद की लैंड है फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉर फार्मिंग एक्टिविटी, राइट? द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. लेबर कैसे होती है? इट्स बीन रिक्वायर्ड स्किल लेबर. ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? उसमें कुछ स्किल्स डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है कि हमें ये स्किल्स के लिए हमें ये बंदे चाहिए, राइट? इनके पास में ये स्किल्स होनी चाहिए, ये काम के लिए हमें ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? और कुछ होते हैं जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करें, फार्मिंग की बात करें, तो दे नीड अनस्किल्ड वर्कर्स, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड. तो सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, राइट? वेदर स्किल्ड और अनस्किल्ड. The third requirement of production is physical capital. या बहुत अच्छे से समझिएगा because this is an important topic. ठीक है, the third requirement is physical capital. So fixed capital हमको पता है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अगेन physical capital is divided into 2 parts, right? Fixed capital and working capital. So what is a fixed capital? Tools, machines, buildings, floors, generators, turbines, computers, etc. are used in production for many years. I have already explained earlier, and so that these are called the fixed capital, right? So इनको हम बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं. ठीक है, एक बार आपने बाय कर लिया, कोई भी टूल्स आपने बाय कर लिया, कोई भी मशीन भी आपने बाय कर लिया, तो आपको सालों साल उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. आप उसको क्या करते हैं? फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप उसको यूज करते हैं, राइट?
And second requirement is raw material और cash in hand, that is the working capital. work जिससे कर रहे हैं किसके लिए चाहिए, हमें काम करने के लिए क्या मिलता है, पैसा मिलता है. अब ऐसे लर्न करेंगे. वर्किंग कैपिटल मीन्स जो कि वर्क करने में काम में आती है, राइट. फिक्स कैपिटल मतलब जो फिक्स रहती है, राइट. तो कैश इन हैंड और वर्किंग कैश इन हैंड एंड रॉ मटेरियल जो है उसको हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल, राइट. द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन तीनों फैक्टर्स को अरेंज कौन करेगा, ऑब्वियसली कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर, राइट. तो फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन कैपिटल, दैट इज नॉलेज होना चाहिए एंड एंटरप्राइज टू पुट लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल टुगेदर और उससे क्या प्रोड्यूस हो, आउटपुट प्रोड्यूस हो, या तो वो खुद के लिए यूज करे या फॉर द मार्केट में सेलिंग के लिए यूज हो, राइट. So fourth factor of production is human capital, or we can say entrepreneur, right? So there are four factors of production: land, labor, capital, and entrepreneur. Physical capital again divided into two parts: fixed capital and working capital, right? So next, move to the next slide. Farming in Palampur. The standard unit of measuring land is hectare. ठीक है, कोई भी लैंड को मेजर करने के लिए एक जो स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स किया हुआ है वो दैट इज हेक्टर, राइट. लेकिन लोकल यूनिट्स में अगर हम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द विलेज, तो वहाँ पे लोकल यूनिट्स यूज करते हैं. जैसे बोलते हैं 1 बीघा जमीन है, 1 गुंठा जमीन है मेरे पास में, तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. ये आपको क्लियर होना चाहिए, राइट. तो हियर देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. फार्मिंग जो है होता है यहाँ पे प्रैक्टिस जो करते हैं फार्मिंग का, वो 2 तरीके से करते हैं. एक तरीका है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, दूसरा है एडवांस मेथड, राइट. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड, तो उसके अंदर क्या होता, पर्सिकन व्हील्स यूज होते थे. दीज व्हील्स आर वंस यूज्ड बाय द फार्मर्स, तो यूज करते थे टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट. छोटी छोटी फील्ड्स होती थी, उनको इरिगेट करने के लिए वाटर को ड्रॉ किया जाता था वेल से with the help of the Persian wheel, right? अगर हम बात करें ट्रेडिशनल सीड्स, उसके अंदर इरिगेशन चाहिए, है ना. ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरिगेशन. If I'm talking about the HYV seeds, that is high yield variety of seeds, they require plenty of water, huge water amount. ठीक है, उसमें क्यों चाहिए हमें पानी, क्योंकि उसमें केमिकल्स का यूज हुआ है, राइट. लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, वी नीड लेस वाटर, वी नीड लेस इरिगेशन. तो फार्मर क्या यूज करते हैं, मैन्योर, काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर. लेकिन उससे लो यील्ड. यील्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा. यील्ड मीन्स प्रोडक्शन, राइट. So land is a fixed factor of production. All land in Palampur is cultivated and there is no land left idle. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ध्यान रहना चाहिए कि लैंड क्या है. लैंड इज अ मूवेबल, नो. तो लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट. और अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पालमपुर, देन ऑल लैंड ऑफ पालमपुर इज कल्टिवेटेड एंड देयर इज नो लैंड लेफ्ट आइडल. ठीक है, सारी लैंड को क्या कर लिया गया, अंडर फार्मिंग ले लिया गया है, कोई भी लैंड वहां पे खाली नहीं है, राइट. इन सच अ कंडीशन इफ इज देयर so multiple cropping I have already explained to you. Now let's come to the modern farming method. Modern farming methods means use of HYV seeds. HYV seeds here indicates high yield variety of seeds. ये आता है एग्जाम में. Tubewells for irrigation, chemical fertilizers, pesticides, machineries like tractors and threshers to increase the agriculture production, right? So what is the working capital required by the farmer using modern farming methods? Obviously investment is high, right? If I'm talking about the modern farming methods, meaning a farmer needs a huge capital. ठीक है, तो वो किसके पास में होगी, जो रिच फार्मर्स हैं, जो लार्ज फार्मर्स हैं, उन्हीं के पास में कैपिटल होगी, राइट. So working capital required by the farmer using modern farming methods like HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides, etc. and money in hand items like diesel. Modern farming methods require farmer to start with more capital than before. Why? Here is the question. So how will the land sustain? क्यों जरूरत है, अगर मॉडर्न मतलब ट्रेडिशनल मेथड से कोई भी फार्मर स्विच कर रहा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, तो उसको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको क्या क्या खरीदना पड़ेगा, उनको ट्रैक्टर्स खरीदने पड़ेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मशीनरीज में, और उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा HYV सीड्स उनको बाय करने पड़ेंगे, ठीक है, टू
to increase the production, to increase the yield, right? So और उनको क्या चाहिए, उनको लेबर चाहिए, उनको पहली बात तो लैंड बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ विल द लैंड सस्टेन, राइट? लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स एज वी ऑल नो एंड इट शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स वी आर यूजिंग ऑन लैंड। अगर हम बालों में भी बहुत ज्यादा केमिकल्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा कलर लगाते हैं, तो हमको पता चलता है कि बाल जो है हमारे, हेयर जो है वो ग्रेइश होने लग जाते हैं, राइट, वाइट होने लग जाते हैं। ऐसे ही इफ वी आर यूजिंग द लैंड और कंटिन्यूसली वी आर यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, so how will the land sustain? So here is a question, right? For raising the production, a great deal of pressure has been put on the land. ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हुआ, ये हमारे लिए विन विन वाली सिचुएशन तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं लैंड जो थी वो क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लैंड पे प्रेशर डाला जा रहा है, राइट? सॉइल फर्टिलिटी क्या होगी, हैज गॉन डाउन ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, राइट? बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, विल किल द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, उनको जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किल कर देते हैं, राइट? और सेकेंड फैक्टर क्या है, सेकेंड कॉज क्या है कि कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग HYV सीड फॉर प्रोडक्शन, राइट? सो HYV सीड्स नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन पानी हमारे पास में है नहीं, वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी है नहीं एज रिक्वायर्ड। तो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का फ्रॉम ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, राइट? तो इससे क्या हो रहा है, एक जो फिक्स वाटर टेबल होना चाहिए वो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वाटर लेवल रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्योंकि अर्थ में जो हीट है वो ज्यादा ट्रैप होगी, क्योंकि वाटर टेबल परफेक्टली मेंटेन नहीं है, जितना लेवल होना चाहिए उतना मेंटेन नहीं हो रहा है वाटर टेबल। उससे क्या होगा, उससे जो हीट है वो ज्यादा ट्रैप होगी अर्थ में, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो यू ऑल नो कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, राइट? बिकॉज पॉल्यूशन ही हो रहा है एक तरह का यहाँ पे। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, दे सीप इनटू द वाटर, दे सीप इनटू द सॉइल डीपली, ठीक है। जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल में, तो जितने भी मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हुए बाकी जो होता है वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, अंदर चला जाता है, दे सीप इनटू द ग्राउंड, और वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देता है, राइट? तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर, so 150 out of 150 families are landless, as I've already told you, 1/3 families, 450 का 1/3 करेंगे, that is 150 families are landless and most of them are Dalit. Most of them are Dalit means they are SC, right? 450 में से out of 240 families जो थी, उनके पास में छोटे छोटे प्लॉट्स हैं लैंड के, जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम है, राइट? जो इनकम है इस लैंड से वो फार्मर्स की फैमिली को सपोर्ट नहीं करती है। 450 में से अगर हम देखें, आउट ऑफ 450 60 फैमिलीज जो है वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास में क्या है, दे हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जिनके पास में 2 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड है। और फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स जो हैं उनके पास में 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है और ज्यादा है, राइट? तो हु विल प्रोवाइड द लिव? लैंडलेस फैमिलीज और जो फार्मर्स हैं, जो कि जिनके पास में स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है, वो किसके लिए काम करेंगे? दे वर्क फॉर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर, right? Laborers do not have any right over the crops grown on the land. Laborers जो भी हायर किए जा रहे हैं किसके थ्रू? बाय द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, ठीक है? तो वो जो भी लैंड पे ग्रो हो रहा है, जो भी क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, उनके पास में उसको उसका कोई राइट नहीं होता है, क्योंकि जो लेबरर्स होती हैं उनको हायर किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस, राइट? तो द मिनिमम वेजेस जो है फार्म लेबरर के, जो सेटअप कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये अप्रैल का डेटा है जो आपको बता रहा है कि कितना कर रखा है, 115, राइट? 115 रुपए, राइट? अप्रैल 2011 का डेटा बता रही हूँ मैं आपको, बट द लेबरर्स गेट ओनली 80 रुपीज ओनली, राइट? व्हाई? बिकॉज एज यू ऑल नो देयर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन एंड ह्यूज
अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, राइट। स्पेशली अगर हम बात करें जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनके पास में क्या है, बहुत कम लैंड है जिससे वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। उनको क्या करना पड़ता है, लार्ज फार्मर्स के लिए, मीडियम फार्मर्स के लिए काम करना पड़ता है उनके लैंड पे जाके। और जो लैंडलेस फार्मर्स है कंपैरेटिवली वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स। तो अगर हम बात करें तो स्मॉल फार्मर्स क्या है, दे आर लैंडलेस और दे आर हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो किसी की फार्म पे जाके काम करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस जो है वो भी उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं कि हम 80 रुपीज में भी काम कर लेंगे। यही हाल था पालमपुर में। ये आ सकता है कि the minimum wages will be set by the government, that is 1115, but why the laborers are getting 80 rupees, why? So there is a huge competition, right? तो आपको ये आंसर में लिखना है। Let's start the next topic, capital needed in farming. So modern farming methods require a great deal of capital. मॉडर्न फार्मिंग जैसा कि हमने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या रिक्वायर्ड है, उसमें कैपिटल बहुत सारा चाहिए, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड। सो एज अ रिजल्ट द फार्मर नीड्स मोर कैश देन बिफोर, ठीक है। कोई भी अगर फार्मर है वो ट्रेडिशनल मेथड से क्या कर रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से स्विच कर रहा है, तो उनको क्या चाहिए, बहुत सारा कैपिटल चाहिए, राइट, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स। अब हमने ये पढ़ते आए, हम पहले से पढ़ते आए हिस्ट्री में, क्या वो लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, किससे लेते हैं, दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और दे आर चार्जिंग अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें वो डेट ट्रैप वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। वो आप 10th में पढ़ोगे, राइट। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स and thus they fall into the debt trap. Debt trap किसे बोलते हैं, एक लोन लिया, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ा क्योंकि उसको रीपे ही नहीं कर पाए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आर क्वाइट हायर, राइट। So this is all about the story of village Palampur. The end. I think you like the chapter and you like the lecture. If you like my content, then please subscribe to my channel and share this video with your friends.